New Hope TV, your encounter with God. One day, एक दिन the disciples were with Jesus in the boat. चेले लोग यीशु के साथ नाव में सवार थे। Everything was fine. सब कुछ ठीक ठाक चल And रहा था। suddenly a storm came out of nowhere and seemed to drown them. It was such a ferocious storm. और अचानक ऐसा होता है कि एक भारी प्रचंड तूफान वहां से उठ खड़ा होता है। The interesting part in that journey was और देखिए उस सफर में की दिलचस्प बात यहाँ पर यह है, that this journey was undertaken by the will of God himself. यह यात्रा, यह सफर की शुरुआत जो हुई थी, यह तो खुद प्रभु की इच्छा से ही हुई थी। Many people say, oh, it was not in the will of God. No, even it was in the will of God, there will be some issues. Okay, please देखिए बहुत सारे listen. लोग ऐसा कहते हैं, ओ ये परमेश्वर की इच्छा शायद नहीं रही होगी। देखिए परमेश्वर की इच्छा हो तो भी ऐसे कुछ मामले रहेंगे, Because in Mark 4:35, क्योंकि मरकुस का चौथा अध्याय 35वें वचन में लिखा Jesus है, himself told the disciples, let us cross over to the other side. यीशु ने खुद अपने चेलों से ऐसा कहा कि चलो हम दूसरी ओर यानी पार जाएं। And the disciples responded with total obedience. और चेलों ने वहां पर पूरी आज्ञा मानते हुए आगे सफर तय किया। They had this to go through the storm. और जब वे तूफान में से गुजरने लगे, They must be wondering, शायद वे सोच में पड़ गए होंगे, we had obeyed the Lord's command. हमने प्रभु की आज्ञा को माना है, Then why this severe storm? तो ये भारी प्रचंड तूफान क्यों आया? Sometimes कभी the कभी storms we face walking in obedience are greater than the storms when we come across when we are not obedient to the Lord. Are you understanding what I'm saying? और कभी कभी ध्यान से सुनिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तब जिस तूफान में से गुजरना पड़ता है उससे कहीं भारी तूफान वो होता है जब हम प्रभु की आज्ञा को मानकर हम उसमें से गुजरते हैं। Good news is, लेकिन अच्छी खबर you ये will है, come out of that storm. आप उस तूफान में से बाहर You will आएंगे, have a testimony. आपके पास गवाही होगी। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए I हालेलुया। came to encourage somebody. किसी को हौसला बढ़ाने आए हैं, That you are coming out of that storm. आप उस तूफान से बाहर आ रहे हैं, You are coming with a testimony. आप अपनी गवाही के साथ बाहर आ रहे You हैं, are being victorious. आप विजयी बनेंगे। People will use you as a reference point. Hey, come और on. लोग देखिए आपके बारे में उदाहरण देंगे। Now please understand, why do I call it strange forces? और क्यों हम इसे नाम देते हैं अजीब ताकतें? You're doing everything right आप सब कुछ सही कर रहे हैं and things are happening. और फिर भी चीजें हो रही You हैं। see, in Mark chapter 4, आप देखते हैं मरकुस के चौथे अध्याय में, as Jesus was crossing that Sea of Tiberias, और जैसे यीशु उस तिबिरियास की झील को पार कर रहे थे, on वहां the other side, दूसरी ओर there was a man possessed with thousands of demonic spirits. वहां पर एक व्यक्ति था जिसमें हजारों दुष्ट आत्माएं निवास की हुई थी। These demonic spirits were the reason for that storm. वही दुष्ट आत्माएं कारण थी उस तूफान का। So you see, there are unseen demonic powers that are causes of many problems in people's lives. तो आप देखते हैं ऐसे अदृश्य शैतानी शक्तियां होती हैं जो बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवनों में लाती हैं। You may blame this one, that one, this one, my friend, but there are strange forces. If you understand this, I tell you, you will be one step ahead of the other people. देखिए आप इस पर उस पर सभी पर दोष लगाते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे उन अजीब ताकतों का ही हाथ है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप दूसरे सभी लोगों से एक कदम आगे ही रहेंगे। Jesus had this revelation. यीशु के पास ये प्रकाशन था, That's why इसलिए when the disciples came to Jesus, जब चेले लोग यीशु के पास आए they woke him up. और उन्होंने यीशु को जगाया, Jesus was not woken up by the sound of the thunder, the storm and the rain. He was woken up by the cry of his disciples. Come on, somebody shout hallelujah. और यीशु ने देखे बारिश की आवाज या तूफान की आवाज या बिजली कड़कने की आवाज से जागे नहीं, लेकिन यीशु जागे अपने चेलों की पुकार को सुनकर। That's how it is even today. और ऐसा ये आज भी लागू। Jesus knows all the circumstances. हालातों के बारे में यीशु सब कुछ जानते हैं। Jesus knows what you're going through. किस दौर से आप जा रहे हैं But यीशु, if you have to rouse him up, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसे जगाएं and you need to call on his name, तो जरूरी है कि आप उसके नाम को पुकारें, call unto him, उसको पुकारिए, cry out to him in prayer, प्रार्थना में उसको पुकारिए and he will rise in your storm. और वो आपके तूफान में उठ खड़ा होगा। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए So हालेलुया। the first thing, तो पहली चीज, you and I need to understand that we are full of God-given potential. आपको और मुझे हमें समझना है कि हम परमेश्वर के द्वारा दिए हुए क्षमताओं से भरे हुए हैं। No matter how weak you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने no कमजोर matter how हैं, troubled you are, इससे फर्क नहीं पड़ता कितने you मुसीबत में हैं have आप। God-given potential on the inside of you waiting to be released in Jesus' name. आपके अंदर परमेश्वर के द्वारा दी हुई क्षमताएं भरी हुई हैं, बस इंतजार में है बाहर आने के The लिए। second thing, दूसरी चीज, strange forces will always try to control and manipulate your life. अजीब ताकतें जो है हमेशा आपके जीवन को नियंत्रित करके भरमाने की कोशिश करेंगी। Do you overcome it? कैसे आप इस पर जय पाते You हैं? need to take it up in prayer. जरूरी कि आप इन्हें प्रार्थना में लाएं। Please listen carefully. और ध्यान से सुनिए, This is not just a word, this is a word for somebody that will save you. ये बस ऐसा ही बताया जा रहा वचन नहीं है, लेकिन ये खास वो वचन है जो किसी को बचा लेगा। You may be going through issues in your family and you're trying to put a blame on this one and that one. You
need to call on the Lord. और शायद हो सकता है कि आप अपने परिवार में किसी मामलों में से गुजर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं इस पर उस पर दोष लगाने का। नहीं, आपको प्रभु के नाम को पुकारना है। Some of you have not been praying. आप में से कुछ लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। God will shake you out of that complacency and so that you can call on His name. आपको परमेश्वर उस आलसीपन से जगाएगा और ऐसा करेगा कि आप उसके नाम को पुकारें। Third thing, तीसरी चीज, you can steer your life in the right direction. देखिए आप अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ा सकते हैं। Pastor, I have made many mistakes. पासवान जी, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई No हैं। problem. कोई बात नहीं। God's grace allows you, even in that problem, to steer your life in the right direction. परमेश्वर का अनुग्रह देखिए आपके लिए ऐसा करेगा कि उस समस्या में भी आपका जीवन जो है सही दिशा में आगे बढ़े। You look at Rahab in the Bible. She was a prostitute. She'd messed up. और आप देख सकते हैं बाइबल में राहाब नाम की एक महिला थी, वो एक वेश्या थी और सब कुछ उसने गड़बड़ करके रखा था। She aligned with God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह से वो मेल Her कर whole ली house was saved. That was in the Old Testament. Imagine. और पूरा उसका पूरा घराने ने उद्धार पा लिया। जरा कल्पना करिए, ये तो पूरा नियम की बात है। Not only that, लेकिन उतना ही नहीं, she was counted in the lineage of the Messiah himself. यहाँ तक कि यीशु मसीह की वंशावली में भी उसका नाम दर्ज हो गया। What about Ruth? रूत के बारे में क्या? She lost her husband. अपने पति को गंवा बैठी She थी। was an unbeliever. She was a Gentile woman. वो तो बिल्कुल एक अविश्वासी थी, अन्य जाति महिला थी। She was in the lineage of David and ultimately in the lineage of Jesus Christ. और देखिए वो तो दाऊद की वंशावली में आ गए और आखिर में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आई। You see, no matter, my friend, I want to encourage you right now. इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता You हूँ। can steer your life in the right direction. आप अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। Today, I urge you to take hold of your life. Don't just throw it away. आज आपसे अनुरोध करते हैं कि आपके जीवन को थामे रखें, बस यूं ही उड़ने मत दीजिए उसे। This year must have been terrible for you. शायद हो सकता है कि ये साल जो आपके लिए भयंकर रहा हो, Today, take hold of your life. लेकिन आज अपनी जिंदगी को थाम लें। Don't just waste your life like that. अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद न करें। You have to take care of your time, your finances. Shake off that dust, shake off that coat, and rise up and take hold of the Lord right now. आपको अपने समय को, अपने पैसों को, अपनी जिंदगी को थामे रखना है। देखिए उस धूल मिट्टी को झाड़ लीजिए और अपनी जिंदगी को थामे रखें, आगे बढ़ें। Life is like a ship. I told you. जैसे हमने आपको बताया, आपकी जिंदगी जहाज जैसी है God has appointed you as its pilot. और परमेश्वर ने आपको ठहराया है उसके चालक के No रूप में। ship can arrive its destinations without a pilot. कोई भी जहाज जो है अपनी मंजिल पर बिना चालक के नहीं पहुंच सकता। You need to know where you're going. आपको ये जानने की जरूरत है कि आप कहाँ जा रहे Please हैं। understand this right now. मेहरबानी करके समझिए I want इसे। you to say, Lord, speak to me. हम चाहते हैं कि आप बोलें ऐसा कि प्रभु मुझसे बात कर, Lord, guide me. प्रभु मेरी अगुवाई कर। Even as this year is coming to an end. और जैसे साल खत्म होने जा रहा है, You just can't treat it as another day, as another month. Oh, life goes on. No, you should say, Lord, show me what I need to do. Lord, open my eyes to see, and God will start speaking to you. और आप अपनी जिंदगी यूं ही, इस साल को यूं ही बीतते नहीं दे सकते। आपको कहना है कि प्रभु मुझसे बातें करो, प्रभु आपसे बातें करने लगेगा। This is how you do it. इसी तरीके से आप करते हैं। 3 things will help you to stir your ship in the right direction. Write this down. और लिख लीजिए 3 चीजें हैं जो आपकी मदद करेंगी आपके जीवन के जहाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। Vision. दर्शन, Not just from anyone, vision from the Lord. किसी और से मिला हुआ नहीं, लेकिन वो दर्शन जो प्रभु से आता है। Pastor, I've gone through a lot of trouble this अब year. पासवान जी, इस साल में बहुत मुसीबतों में से गुजरा हूं मैं। Don't worry. फिक्र न करें। You see the eagle. आप देखते हैं चील यानी उकाब को, It sees what others cannot see. वो सब देख सकता है जो दूसरे नहीं देख पाते। In the animal kingdom, the eagle just rises and rises and sees things which no other animal can see. Are you listening right now? देखिए प्राणी जगत में जो उकाब यानी चील जो होता है, ऊंचाई और ऊंचाई पर उड़ता चला जाता है और वो सब कुछ वो देख पाता है जो दूसरे जानवर नहीं देख सकते। Rises above the storms तूफानों के ऊपर and ऊंचाई पर उड़ता catches है a vision और दर्शन को पकड़ता है no animal can see, जो दूसरा कोई जानवर नहीं देख which no सकता, bird can see. जिसे दूसरा कोई पंछी नहीं God देख has सकता। called us eagles. People of God, listen to me. We are the children. We have to rise up high and catch that vision that God has for us. परमेश्वर ने हमें उकाब के रूप में बुलाया है। देखिए हम सभी परमेश्वर के संतान हैं और हमें उकाब के समान उस ऊंचाई पर चढ़ते जाना है, उड़ना है और उस दर्शन को पकड़ लेना है। A businessman, प्यारे व्यवसायिक you लोगों, could be going through a very tough time. शायद हो सकता है कि आप कठिन मुश्किल दौर से जा But रहे I हो, challenge you today. लेकिन आज आपको चुनौती देते Say, हैं। Lord, speak to me. आपको कहना है प्रभु मुझसे You बात must कर। be a student and you're like confused and you're like you don't know what to do. Say, Lord, speak to me. Open my eyes to see what you want me to do, Lord. शायद हो Come सकता on. है आप कोई विद्यार्थी हो और आप Yes. उलझन में पड़े हुए हैं कि क्या करना आपको समझ में नहीं आता। Yes. आप बोलिए कि प्रभु मुझसे बातें करो, मुझे दिखा मुझे क्या करना You है। will be like that eagle soaring up above and seeing what God wants you to see. Come on. आप उस उकाब के समान हो जाएंगे जो ऊंचाई पर उड़ते हुए चला जाता है और वो सब देखने लगता है जो परमेश्वर चाहता है कि आप देखें। Maybe you come from a very ordinary background. Your parents were never graduates. Your parents never went to school. No problem. God has
has appointed you, rise up. Hallelujah. Come on. शायद हो सकता है कि आप एकदम साधारण से पृष्ठभूमि में से आए हो, Yes. जहां पर आपके माता पिता ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई न की हो, यहां तक कि वे अनपढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूरी है कि आप उस दर्शन को पकड़ लें और ऊंचा उठें। Say, Lord, speak to me. आपको कहना, प्रभु मुझसे बातें Come on, कर। everybody. Say, Lord, speak to me. चलिए सभी लोग कहें, प्रभु मुझसे बात कर। Open my ears, मेरे कानों को my खोल, eyes, मेरी आंखें, to see, to hear what you have for me. देखने और सुनने के जो तेरे पास मेरे लिए है। You keep praying this prayer for this next few weeks that we have. और अगले कुछ हफ्ते जो बचे हैं हमारे पास, लगातार ये प्रार्थना आप करते जाएं। God will give you that vision. और परमेश्वर आपको वो दर्शन God देगा। will release that vision from heaven. परमेश्वर स्वर्ग से उस दर्शन को आपके लिए मुक्त करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Turn with me to the book of Hebrews 11 and verse 10. चलिए निकाले हमारे साथ इस समय इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 10वां वचन है। Abraham was confidently looking toward a city with eternal foundations, not ordinary foundations, a city designed and built by God. क्योंकि अब्राहम उस स्थिर नींव वाले, स्थिर बुनियाद वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। When God called him, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, he was not looking for a city that he would build. और देखिए वो उस नगर की तलाश में नहीं था जिसे वो बनाने वाला है, He was looking for a city where God would build. लेकिन वो उस नगर की तलाश में था जो परमेश्वर खुद बनाने वाला He had था। a vision. उसके पास एक दर्शन। He came out with nothing, but he had a vision. देखिए वो बाहर निकल कर आया, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास Imagine, दर्शन था। please, and this is the situation with many of you watching. और देखिए यही तो आप में से बहुत सारे जो देख रहे हैं, आपके भी हालात हैं। You are saying, I don't have anything now. आप कह रहे हैं अभी मेरे पास कुछ भी नहीं। My friend, मेरे दोस्त, you can lose everything. आप सब कुछ गंवा सकते हैं, But when you have a vision, लेकिन जब आपके पास दर्शन you will होता है, gain everything. आप सब कुछ हासिल करेंगे। Somebody say, I receive this word. कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता You हूँ। see, when God will deposit that vision inside of you, अब देखिए जब परमेश्वर ने उस दर्शन को आपके अंदर निवेश किया था, hey, सुनिए, He will bring it to pass. उसे वो जरूर पूरा Two करेगा। hands and just take a praise break for 5 seconds and say hallelujah. Come on, चलिए अपने somebody. हाथ उठाकर कुछ Shaka 5 para सेकंड basa का prata अवकाश लेते हुए प्रभु की स्तुति करें, बोले Glory to हालेलुया। चलिए, Jesus. Glory यीशु to को महिमा the मिले, यीशु living को महिमा God. मिले। Say, Lord, download your vision in my life. कहे कि प्रभु आपका दर्शन मेरी जिंदगी में डाल दे। You see, you're not on this earth to raise up some few dirhams or rupees or pounds for that matter, any currency that you're on. Okay. और देखिए No. आप इस धरती पर इसलिए नहीं रखे गए हैं ताकि आप कुछ दिराम या कुछ रुपए या कुछ पाउंड जो भी मुद्राएं God होती हैं bless उन्हें you. कमाएं, उन्हें हासिल करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। You see, there is a God-given assignment that you have to fulfill. लेकिन आप देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए ऐसे काम है जो आप ही को पूरा करना है। You will know where you will be going. आपको ये पता चल जाएगा कहाँ जाएंगे। Knowing God's assignment will remove the frustration from your life. परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ काम को जानना ये आपकी जिंदगी में से हताशाओं को निकाल देगा। That's why Abraham was not frustrated, you know. इसी वजह से हम देखते हैं अब्राहम हताश नहीं हुआ। He knew God called him. वो जानता था परमेश्वर की बुलाहट को, He knew that God is leading him. वो जानता था परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा So that is the vision. है। तो यही तो है दर्शन। This will remove the frustration from your life. That will be released in your life. ये आपकी जिंदगी में से वो सारी परेशानियां और हताशाओं को निकाल देंगी और आपके जीवन में ऐसी चीजें होने लगेंगी। You are a son of the living God. आप परमेश्वर की संतान, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Church of God. परमेश्वर के लिए You will see vision. God will direct you. आप यकीनन दर्शन देखेंगे, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। Many years ago, कई साल पहले I wrote a letter to a great man of God. पासवान जी ने एक खत लिखे, परमेश्वर के महान जन। I love him very much, even today. परमेश्वर के महान जन पासवान जी ने बहुत पसंद करते थे, आज भी उन्हें प्यार करते हैं, पसंद None करते other हैं। than Uncle DJ's Dinakaran. कोई और नहीं, अंकल डीजेस दिनकरन जी। Many years back, कई साल पहले he didn't expect a reply actually. पासवान जी ने अपेक्षा ही नहीं किया था कि उत्तर देंगे वे। And I wrote to him all my problems and things like that. पासवान जी ने अपनी सारी समस्याएं लिखते हुए उनको खत भेजे। And there was a very short letter. एक छोटा सा संदेश से भरा In खत that, था it was signed by the ball pen. और उसमें हस्ताक्षर किया हुआ था बॉल पेन के जरिए, And in that, he mentioned one scripture. और उसमें उन्होंने एक वचन को दर्ज किया था That has been my scripture for life. जो कि पासवान जी के लिए जीवन की बुनियादी बनी। Psalm 32 verse 8. वचन संहिता अध्याय 32 का 8वां वचन। In that scripture says, उस वचन में लिखा, I will instruct you. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, I will teach you in the way you must go. जिस मार्ग में तुम्हें जाना है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, I will guide you with my eye. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। When I read that scripture, जब पासवान जी ने पढ़े इस I वचन said, को, this is what I want. यही तो मैं चाहता हूँ, कुछ I कहता है। pray this message answers you. प्रार्थना करते हैं कि ये संदेश जो है आपको उत्तर दे When you दे। have that vision from God, जब आपके पास परमेश्वर की ओर से वो दर्शन होता है, you will not worry about who left you, आपको इसकी फिक्र ही नहीं होगी या आप इसकी परवाह ही नहीं करें कौन आपको छोड़ गया, because your vision is from God. क्योंकि आपका दर्शन प्रभु से आया है। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। So get that vision from the Lord. Say, Lord, speak to me. तो प्रभु से वो दर्शन को पा लीजिए, वो कहे कि प्रभु मुझसे बातें कर। Second one, दूसरा है hope in the Lord's goodness. प्रभु की भलाई में आशा रखना। I'll explain.
बताएंगे। Go to Psalm 27 verses 13 onward चल now. निकाले इस समय भजन संहिता का अध्याय 27 उसके 13 वचन से। I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि मैं विश्वास न करता कि जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। The psalmist is saying, I would have been frustrated, I would have been despaired unless what? I had believed. So how can you remove the frustration, the despair from your life is you need to believe inside of you that yes, I will see the goodness of the Lord, not when I die, in the land of the living. Somebody say, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Somebody raise your hand and shout hallelujah. Come on somebody. देखिए भजनकार इस तरह से कहते हैं कि मैं मूर्छित हो जाता, मैं हताश और परेशान हो जाता अगर मैं विश्वास नहीं करता तो देखिए मायने रखती है कि आप अपने अंदर से, अपने दिल से विश्वास करें। किस में विश्वास करना है? आपको परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करना है। And how do you believe? और कैसे आप विश्वास करते हैं? What you believe, जो आप विश्वास करते you हैं will speak. वो आप बोलेंगे। Say it. सभी लोग कहें, I will see the goodness of the Lord मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा in the land of the living. जीवितों की पृथ्वी पर। Can I take it a little more closer? क्या और थोड़ा करीब ले जा Say, सकते I will see the goodness of the Lord हैं? कहें कि मैं प्रभु की भलाई को देखूंगा in the days to come. Come on. आने वाले दिनों में। Come on, somebody say hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया। Not just at the end of your life. और आप अपनी जिंदगी के आखिर में नहीं, What एकदम you believe, you will speak it out. जो आप विश्वास करते वो आप बोलेंगे। Come on, somebody. चलिए कोई तो। That's how you manifest your belief. इसी तरीके से आप अपने विश्वास को जाहिर करते Paul हैं। says, I believed and therefore I spoke. फिर पौलुस ने कहा मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोलता हूँ। You should say, I believe that I will see the goodness of the Lord in these days to come. आपको ऐसा कहना है कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा इन आने वाले दिनों में, It will happen. और ऐसा होगा। What you say will happen. You are the prophet of your life. जो आप कहते हैं वह आपके लिए हो जाएगा। आप अपने जीवन के भविष्यवक्ता हैं। Many times, देखिए बहुत बार you know, people are waiting for somebody to prophesy over their lives. लोग इंतजार में रुके रहते हैं कि कोई और उनके जिंदगी पर कोई भविष्यवाणी करेगा। I'll tell you what is prophecy. आपको बताते हैं कि भविष्यवाणी हो The word is prophetic. Hey, वचन जो है भविष्यवक्ताई तौर पे है। you take the word आप वचन को and लीजिए you prophesied over your life. और अपनी जिंदगी पर आप उसकी भविष्यवाणी That's करें। prophetic. यही तो है भविष्यवक्ताई तौर Lift पे। your hand and say, I believe. अपने हाथ उठाकर कहें, मैं विश्वास करता I हूँ will see the goodness of the Lord मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा in these days to come. इन आने वाले दिनों में। In the name of यीशु Jesus. के नाम में Keep saying that. बोलते रहें ऐसा। You will have testimonies. आपके पास गवाही होगी। You will say which one? The first one, the second one, the third one. Oh my goodness. You will have testimony. People will say, my goodness, this fellow, they'll call you testimony man, testimony woman. Come on, somebody. और आप इस बात में परेशान रहेंगे कि पहला दो या दूसरा या तीसरी गवाही दो। देखिए लोग Come आपके on. बारे में कहेंगे ये तो हमेशा गवाही देने वाला व्यक्ति ही है। काश हमारे पास ड्रम होता है यहाँ You पर। know, church, देखिए कलीसिया, you know, every father, mother, देखिए हर एक माता पिता, no matter if they are poor, इससे फर्क नहीं पड़ता आप एक गरीब ही क्यों ना हो, they always do something for their वे children. हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ Now, खास there are करेंगे। exceptions. I'm not saying no, but most of the parents, देखिए ज्यादातर माता पिता they always like to do something for their children. हमेशा वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहेंगे। One man wrote to me एक व्यक्ति ने लिखा during the lockdown. इस लॉकडाउन के दरमियान, Says, Pastor, उन्होंने कहा पासवान, we are not begging and asking for money, but would you please pray for us? Because from 2 days we are drinking tea and we have only 200 rupees remaining for the milk for my child. उन्होंने इस तरह से लिखे कि हम आपसे Amazing खाने पीने की people, चीज़ों के लिए amazing या people. पैसों के लिए हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन क्या आप मेहरबानी करके हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे पास बस 200 रुपए ही बचे हैं अपने और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अद्भुत चीज़ है, क्या आप हमारे लिए प्रार्थना They करेंगे? were going hungry, देखिए वो भूख में हैं, but they were feeding their child. लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं। That's the love of a father and mother. यही तो एक माता पिता का प्रेम है। You think God is just like us? आपको क्या लगता है परमेश्वर बिल्कुल हमारे If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good things? Good things. You have to believe in the goodness of God. तुम बुरे होकर अपने बच्चों को मांगने पर अच्छी चीजें देना जानते हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो भला है मांगने पर अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? आपको परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करना है। Say, God, you are good. कहे कि परमेश्वर तू भला And है I will see your goodness in these days to come. और मैं आपकी भलाई को इन आने वाले दिनों में देखूंगा। He doesn't count our sins. He's a merciful Father. You just come to Him and say, Lord, I messed up. I'm sorry. I believe what you did on the cross. You are good.
wiped off. Hallelujah. देखिए हमारे पाप और Yes. गलतियों का हिसाब किताब वो रखता नहीं है। बस आप कहें कि प्रभु धन्यवाद, तू मेरे पाप खाते तू क्रूस पर मरा, मुझे क्षमा Yes. कर दे, बस वो क्षमा कर देता Today है will you आपको। turn to आज Jesus, क्या आप यीशु की ओर मुड़ जाएंगे, to your Father, अपने पिता की to ओर, your Heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता की ओर? Say, Lord, I believe I will see the goodness of कहेंगे God. प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की भलाई को The देखूंगा। devil is a liar. वो शैतान झूठा है। I'm telling you कहते हैं आपसे, that the evil power is leaving your home today. वो शैतानी शक्तियां के घर से निकल रही हैं आज। In the name of यीशु Jesus. के नाम। One man of God said it like this. परमेश्वर जन ने इस प्रकार से कहा, Hope is anticipating God's goodness. आशा जो है ये अब परमेश्वर की भलाई की अपेक्षा करना है। The only reason that you and I have hope in today's times is because God is good. और देखिए सिर्फ एक ही कारण कि आप और हम इस बुरे दौर में भलाई की आशा कर सकते हैं, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर भला है। In all this mess, इस सारी गड़बड़ी और बर्बादी के दौर में can something good come out? क्या कुछ अच्छा निकल के आ सकता है? Yes. जी हाँ। How can you say that, Pastor? पासवान जी आप ये कैसे बोल सकते हैं? God is good. परमेश्वर भला है, You can rely on Him. That's our hope. आप उस Blessed पर hope. निर्भर हो सकते हैं, यही तो है आशा हमारी। So, in order to steer through the strong winds of life, तो देखिए जीवन के इस बुरे दौर में से भी सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए you must believe that you will see the goodness of the Lord in the land of the living. आपको ये विश्वास करने की जरूरत है कि आप जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। Let's get some scripture on this. चलिए इस पर आधारित कुछ वचन को लेते हैं। Against all odds, when it looked hopeless, see that hopeless? Abraham believed what? The promise and expected God to fulfill it. He took God at His word, and as a result, he became the father of many nations. God's declaration over him came to pass. Your descendants will be so many that they will be impossible to count. अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। Notice it says, when it looked hopeless, देखिए वचन में इस तरह से लिखा है कि जब सब कुछ निराशा से भरा दिख रहा था, Abraham believed. अब्राहम ने विश्वास किया। Anybody can believe when things are going right. और देखिए जब चीजें सही चल रही हो तो कोई भी विश्वास कर सकता है, When it looked hopeless, लेकिन जब चीजें लाचार दिखाई देती हैं, Abraham believed. अब्राहम ने विश्वास किया। He believed God's declaration over him. देखिए परमेश्वर ने जो उस पर घोषित किया, उस पर उसमें विश्वास किया। Descendants, imagine a man who has no child. जरा कल्पना करें कि एक व्यक्ति जिसका कोई बच्चा ही न हो, He was believing for a big family. वो देखिए अपने बड़े परिवार के लिए विश्वास कर रहा है। When you don't have money, you're believing for something good in your home. जब आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप अपने घर में कुछ बड़ी चीज, कुछ भलाई की चीजें होने की आशा कर Can रहे I हैं, विश्वास believe कर रहे that, हैं। Pastor? Yes. क्या पासवान जी मैं विश्वास कर रहा हूं? The जी हाँ। Bible says, बाइबल कहती the है Lord delights in the prosperity of His servant. प्रभु को अपने सेवक की समृद्धि में खुशी मिलती है। You're not only the servant, आप सिर्फ उसके सेवक नहीं, you're His child. आप उसकी संतान भी हैं। Hey, hallelujah. हालेलुया। There are many servants in God's house. परमेश्वर के भवन में बहुत सारे सेवक हैं And there are children. और बच्चे भी हैं, The children get to wear the best. और जो बच्चे होते हैं उन्हें श्रेष्ठ चीज मिलती His है। mercy. ये उसकी दया पर It's His आधारित है, grace. ये उसका अनुग्रह है। That will happen for you. ये आपके साथ भी होगा। I want to tell you, before the year closes, you will laugh. आपसे कहना चाहती है ये साल खत्म होने से पहले आप हंसेंगे। There'll be laughter in your house. There'll be laughter in your home. आपके घर में, आपके परिवार में हंसने का दौर होगा। So you must every day say, I will see the goodness of the Lord. I will see the goodness of the Lord within these coming days. This कहना is a चाहिए मैं prophetic परमेश्वर की भलाई word. को देखूंगा, परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। आने वाले इन दिनों में हर एक को कहना है, देखिए भविष्यवाणी तौर पे है ये। Yes. Proverbs 10 verse 28. This is a prophetic word. You know, prophetic word is not only what, speak personally. This can be a prophetic word for your life. नीति वचन का देखिए 10वां अध्याय उसके 28वें वचन में देखेंगे भविष्यवाणी तौर पर आ रहा ये वचन है। चल The निकालें। hope of the godly results in happiness, but the expectations of the wicked come to nothing. वचन में लिखा है धर्मियों को आशा रखने में आनंद और खुशी मिलती है, मगर दुष्टों की आशा से कुछ नहीं मिलता। Praise God. So every day say, I will see the goodness of the Lord. I will see my family saved. I will see my children in high positions. Keep saying that. Keep saying that. Keep saying that. और आपको कहना है कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने घर परिवार में देखूंगा। अगर आप माता पिता हैं, कहना है आपको कि मैं अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को ऊंचे मुकाम पर देखेंगे। And the third one, तीसरा, I said, your tongue is the rudder of your life. हमने बताया कि आपकी जबान जो है ये आपकी जिंदगी का वो पतवार है। Apostle James
taught us that we should align our tongue with our desire and not with the circumstance. और जैसे प्रेरित याकूब ने कहा कि हमारी ज़बान को जो हमारी लालसाएं हैं उससे हमें मेल करानी है, जो हमारे आसपास चल रहे हालातों से नहीं। Now, this is not easy, देखिए ये आसान नहीं but we है, need to practice it. लेकिन हमें इसका अभ्यास You करना don't है। speak what you see, you speak what you believe. Come on. देखिए आपको वो नहीं बोलना है जो आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको वो बोलना है जो आप विश्वास करते हैं। Please understand this. I have failed many times, but I continue to put it into practice with the help of the Holy Spirit. So let me get that straight. और देखिए आपको बताना चाहते हैं, पास बजे ऐसा कहते हैं कि हम बहुत बार ऐसे नाकाम होते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हमें इसे दोहराते रहना, सही करना So है। Proverbs 15 and verse 4. चलिए निकालें नीति वचन का 15वां अध्याय उसका 4था A वचन। wholesome tongue is a tree of life, but perverseness in the tongue breaks the spirit. देखिए ऐसा लिखा है, शांति देने वाली जबान जो है यह जीवन वृक्ष है, मगर उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। Something happens in the spirit, man. कुछ तो आत्मिक मनुष्य में होता है। In all situations, we should learn to speak our faith, to speak our desire. हर एक हालात और परिस्थितियों में हमें अपने विश्वास को बोलना है, हमें अपनी लालसाओं को बोलना है। We are not to speak our fear, we are to speak our faith. We are not to speak our dread, but we are to speak our desire. और देखिए हमें अपने डर को नहीं, लेकिन हमें अपने विश्वास को बोलना है, हमें अपनी लालसाओं को बोलना है, घबराहट को नहीं। You know, the psalmist prayed, and how do we overcome this challenge? Sometimes, we speak the same things what we see around us. और देखिए भजनकार ने देखिए यहाँ पे चुनौती देते हुए कहते हैं, और कैसे हम ये बोल सकते हैं, देखिए अक्सर क्या होता है हमारे आसपास जो चल रहा होता है उन्हीं बातों को देखकर हम बोलते हैं। Psalmist prayed, भजनकार ने प्रार्थना की, set a guard, O Lord, over my mouth, keep watch over the door of my lips. इस तरह से प्रार्थना उन्होंने की कि हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। This is a good prayer to pray every day. और बड़ी अच्छी प्रार्थना है हर दिन प्रार्थना करने के लिए। Now you could pray this every morning. हर सुबह आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. A beautiful prayer to pray every day, the first thing in the morning. देखिए ये प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। बड़ी खूबसूरत ये प्रार्थना है हर सुबह करने के लिए। This is how we can allow the Holy Spirit to take control of our tongues. तो देखिए इसी तरीके से हम पवित्र आत्मा को इजाजत दे सकते हैं हमारी ज़बान पर नियंत्रण करने की। You can also use the daily confessions from the Noah app. You go down to Noah app and there are daily confessions you can use to train your tongue to speak your desire and not your dread. Come on now. और देखिए इसी तरीके से आप नोआ ऐप पर भी जाकर वहां पर दैनिक अंगीकार दिया गया है, आप उसमें जाकर हर दिन बोलने वाली जो अंगीकार हैं उन्हें आप बोल सकते हैं, और आपके डर को नहीं लेकिन आप अपने विश्वास को बोल सकते हैं।